welcome to this very special edition of Dynamic CISO LinkedIn Live Show. We have a very special guest today whom I will introduce formally. But before that, let me take 2-3 minutes of time to set the context for this conversation. And then we will have a very heart-to-heart conversation with our guest. So a total of about 3.17 lakh cyber crimes and 5,771 FIRs were registered online through a centralized National Cybercrime Reporting Portal in the last 18 months. This data is actually a little dated, but this was the report given by Minister of Home Affairs for State in the Parliament. So Minister of Home Affairs operationalized the National Cybercrime Reporting Portal on August 30th, 2019 to provide a centralized mechanism to its citizens for online reporting of all types of cybercrime incidents, with a special focus on cybercrime against women and cybercrime against children. As per the data maintained since its inception, around 3,17,439 cybercrime incidents and 5,771 FIRs have been registered up to February 28th, 2021 in the country. Now, this is the extent of cybercrime that we are talking about, which is actually registered and is brought to light. If we look at some other reports which are not exactly related to the government data or cybercrime, for example, Norton Cyber Safety Insights report, it says that more than 27 million Indian adults experienced identity theft in the past 12 months, and 52% of Indian adults admitted they don't know how to protect themselves from the cybercrime. Be it mobile banking frauds, identity theft crimes, crime committed through impersonation or other means, the incidents are on the rise. We are witnessing them day in and day out. Although the law enforcement and cyber police is effectively nabbing a lot of cyber criminals, many of them remain at large either due to loopholes in the law or insufficient tracing. However, both central and state apparatuses are quite proactive in nabbing cyber criminals and bringing them to books. It is very scary, it is dreading, it's damaging, and it can be frustrating to be defrauded by a criminal. To talk about a lot of these issues and about the world of cybercrime and cyber fraud, we have got with us today Professor Triveni Singh, a cyber cop, an accomplished Indian Police Service officer, and a very highly regarded law enforcement officer with fabulous track record. Welcome to the show, Dr. Triveni Singh ji. We are very grateful that you have joined us today. And this conversation will be bilingual in Hindi and English because I would like all of you to ask questions to Dr. Triveni Singh, whichever language you prefer, Hindi or English. स्वागत है सर आपका शो में. धन्यवाद राहुल. बहुत अच्छा, मेरा काम आपने आसान कर दिया. हिंदी और अंग्रेजी बोल के, अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है हमको. सर हम दोनों करेंगे जिस लैंग्वेज में आपको सहूलियत हो, जिसमें आपको इजी लगे उसी में आप बात करिए. ठीक है. मैं आपको बताऊं कि जो आप अभी स्टैटिस्टिक्स आप बता रहे थे साइबर क्राइम का, so if I am going to talk about Uttar Pradesh only, then in last 18 months we have got more than 55,000 cases. 55,000 cases, and that cases have been pushed down from MHA, cybercrime.gov.in to our CCTNS portal. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज जो तैयार किया है ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उससे 55,000 केसेज आए हैं. अगर मैं यूपी की बात करूं तो 10,000 केसेस पर ईयर हम रजिस्टर कर रहे हैं. रजिस्टर जिसका FIR है 10,000 केसेज आ रहे हैं. और अगर कंप्लेंट लेकर के बात करूं कि जो थाने पे लोग घूमते रहते हैं, तो ये 3 टाइम्स और ज्यादा होगा. तो कुल मिला के अगर आप कहें तो 1 ईयर में जो FIR है प्लस कंप्लेंट है प्लस जो सेंट्रल रिपोर्टिंग सिस्टम से आ रहा है, सो 1 लाख का फिगर है ये. अब आप सोचिए कि कितना एक्सपोनेंशियल राइज है साइबर क्राइम में. अब हम अगर नेचर की बात करें कि किस तरह के साइबर क्राइम के किस्से जा रहे हैं, तो क्या होता था अर्लियर, क्या करते थे, दे यूज्ड टू कंप्रोमाइज और मेल आईडी और कोई क्लोन बना लेता था आपका फेसबुक का,
या फेसबुक हैक कर, सोशल मीडिया अकाउंट आपका हैक कर लिया, मेल हैक कर लिया। अब नाउ the cyber crime is getting more and more sophisticated, you know. In last 18 months we have registered cases of cyber terrorism, cryptocurrency exchange fraud, you know, crypto frauds के केसेस ढेर सारे आ रहे हैं। आपको सुनाई पड़ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल साफ आ रही है। अब सोचिए, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में के फ्रॉड आ रहे हैं, साइबर टेररिज्म के फ्रॉड आ रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक अचानक बढ़ गए हैं। और ये नहीं कि नॉट ओनली ऑन कॉर्पोरेट अकाउंट्स, यू नो, कॉर्पोरेट पे ही नहीं, even individual, you know, high net worth individual, they are being affected, like chartered accountant, doctors, you know, जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, they are being affected। तो रैंसमवेयर अटैक भी आज की डेट में बड़ा इशू बन के आया है। आप केवल कॉर्पोरेट के नजरिए से न देखिए, मैं तो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ऑफिस में आए, एंड दे टोल्ड मी, सर आवर सिस्टम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। उस पे एक मैसेज आ रहा है कि नाउ योर फाइल इज एन्क्रिप्टेड, डिस्क इज एन्क्रिप्टेड, इफ यू वांट डिक्रिप्शन टूल देन यू हैव टू पे थ्रू बिटकॉइन, और इतना आप बिटकॉइन देंगे तब हम आपको डिक्रिप्शन की देंगे। इस तरह के केसेस आज की डेट में आ रहे हैं। अब हम लोगों के सामने जो चैलेंज है आज की डेट में, जो चैलेंज सब ये है कि आप जानते हैं पुलिस का रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह जो है वो ये बना है कि कोई भी आदमी पुलिस बन सकता है, वो संस्कृत पढ़ा हो या फिजिक्स पढ़ा हो या मैथ पढ़ा हो। ये जो साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन है वो समाज शास्त्र वाला भी बन सकता है टॉप करके, एंड इमीडिएटली ही विल कम एंड यू नो ही विल बिकम अ साइबर कॉप। अब मेरा ये मानना है कि पहले साइबर कॉप तो बन जाते थे लोग, लेकिन आज की डेट में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि कोई फेक वेबसाइट बना लिया, कोई आपको वीओआईपी प्लेटफॉर्म लोकल बना करके आपको कॉल कर रहा है और आप ही के नंबर को स्पूफ कर दे रहा है। आप सोचिए, आपके नंबर से मैं अगर राहुल आपके नंबर से किसी भी आदमी को करना चाहूंगा तो मेरे पास अभी मोबाइल फोन है, मैं आप ही का नंबर डालूंगा और आप ही को कॉल कर दूंगा और आपके नंबर से कॉल दिखेगा। ये इतना इजी है, मैं खुद भी करता हूँ, इसलिए कि क्रिमिनल को हमको अरेस्ट करना होता है तो कई हमारे टूल्स टेक्निक होते हैं, जो बदमाशों के ही टूल्स टेक्निक को यूज करके हम उनको पकड़ते हैं। वो जो करते रहते हैं ना, हम देखते हैं ये क्या करते हैं, उसी को करके फिर हम उनको पकड़ लेते हैं। तो ये वीओआईपी टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्पूफिंग का जमाना है। स्पूफ में आप जानते हैं टेक्निकली हम IMEI स्पूफ कर सकते हैं, मोबाइल नंबर स्पूफ कर सकते हैं, IP एड्रेसेज स्पूफ कर सकते हैं, मैक ID स्पूफ कर सकते हैं, आप क्लोन बना सकते हैं। डेबिट कार्ड की क्लोनिंग वो स्पूफिंग ही हुआ, उसका क्लोन बना ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना ले रहे हैं, आदमी का क्लोन छोड़ करके। अब तो वो भी जीनोमिक्स में चल रहा है कि एक दिन हो सकता है कि आदमी का भी क्लोन बन जाए। लेकिन अब आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जमाना है। क्या है मतलब, ये सब सोफिया जो है दुबई की सिटीजनशिप ले रही है, तो अगर सोफिया क्राइम करने लगेगी तो हम क्या करेंगे बताइए? क्योंकि सोफिया अगर उसको पता दिया कि सोफिया तुमको ऐसे काम, बैंक ऐसे हैक होता है, तो आपने सब पैरामीटर डिसाइड कर दिए, लॉजिक भी बना दिए, सोफिया को बता दिए, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग उसको ट्रेन भी कर दिया और कहिए कि देखो 4 बैंक दे रहा हूँ, इसको दिन भर लगे रहो, तो वो सोफिया दिन भर लगे रहे, आप सोइए, आपके अकाउंट में पैसा आता रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्राइम हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है, होने लगेगा, तो अब क्या आदमी का तो अब है ही नहीं। अब आदमी तो बस अकाउंट खोल के स्विट्जरलैंड में और या कहीं सेंट क्विट्स तो सर आपने बहुत ही अच्छी बहस छेड़ दी है सर। तो ऐसी सोफिया क्या लॉ एनफोर्समेंट भी पैदा करेगी? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, सोफिया का करेंगे क्या? अगर सोफिया मान लीजिए कोई क्राइम कर दे, क्राइम तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी मैंने देखा कि कारपोरेट हॉस्पिटल पे अटैक हो रहे हैं। कारपोरेट हॉस्पिटल्स पे अटैक का मतलब ये हुआ कि हम वहां तक चले जाते हैं, OT तक चले जा रहे हैं। आपके जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है उसको भी हम दूर से हैक कर ले रहे हैं। सही, एग्जैक्ट। अगर हमको किसी को मर्डर करना हुआ तो क्या हुआ, हमको अगर एंटीबायोटिक देना होगा तो हम कंट्रा कोई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना देंगे, नर्स आएगी, नर्स तो इतनी समझ नहीं रही, वो तो उसको जो सिस्टम पे दिख रहा है वो मेडिसिन दे देगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बहुत ही आसान काम है ना, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसका क्या आंसर है? क्योंकि कारपोरेट को लोग ऑडियंस है आज की डेट में, तो मैं बोलूंगा कम, सवाल ज्यादा करूंगा। सवाल इसलिए करूंगा कि हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस बात के लिए इक्विप्ड नहीं है, न तो हमारी ट्रेनिंग है, न हमारा स्किल सेट है, न हमको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ये सब्जेक्ट रहता है उसमें।
मैं आज की डेट में तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है कि आपको बेसिक साइबर क्राइम का बताया जाएगा। अदरवाइज ये टेक्नोलॉजी इतना वो नहीं है कि 3 डेज 5 डेज का कोर्स दे करके आप किसी को जो है साइबर क्राइम का एक्सपर्ट बना देंगे या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बना देंगे। अब हमारे यहाँ जब पुलिस में केस आता है तो कोई कहता है साहब एक फेक वेबसाइट बना, तो हमारा डेटा चला गया, तो इंस्पेक्टर कहता है डेटा कहाँ से चला गया, दिखाओ तुम्हारा कहाँ से कौन सा डेटा चला गया। अब आप बताइए, उसके समझिए मैंने देखा डेटा क्या होता है। वो कहेगा साहब हमारा सर्वर है, वो कहेगा सर्वर क्या होता है, हटाओ यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा केस हमारे समझ में नहीं आ रहा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमारे इंस्पेक्टर कहते हैं ये बकवास की बात बंद करो, तुम जाओ यहाँ से। अब क्यों उसकी, अगर आप कहेंगे कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या, जैसे अब आज की डेट में तो हर चीज आईपी है और आपकी आईपी डिजिटल है, वो चाहे आपकी प्रोफाइल हो या चाहे आपका बिजनेस मॉडल हो, पूरी सब कुछ डिजिटल है। आप बैंकिंग को देख लीजिए कि बैंक क्या है, बैंक को पहले हम बैंक में क्रिमिनल जाता था, रिवॉल्वर लेके पिस्टल लेके जाके आपके उस पर लगाता था और गन पॉइंट पे पैसा आपसे लेता था। अब क्या है, अगर कोई रॉबर है तो आप देखिए यूट्यूब पे जाइए, ढेर सारे ट्यूटोरियल मिल रहा है हाउ टू रॉब ए बैंक और देखिए कर लीजिए। एक लड़के को मैंने रेड किया और पकड़ा, तो उसने वो फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाता था। आप यकीन मानिए फिंगरप्रिंट का ये क्लोन बनाने वाले लड़के को मैंने कानपुर में आज से 5 साल पहले रेड किया और पकड़ा, पूरा गैंग पकड़ा। उसे करीब 1-1.5 हजार क्लोन फिंगरप्रिंट मिले। तो मैंने कहा क्या करते हैं, तो ये UIDAI का जो आधार कार्ड बनता था वो बनाते थे सब लड़के बैठ करके। तो ये बहुत बड़ा ये नेशनल इश्यू बन गया था। खैर उसको मैंने वो कर दिया उस केस को। लेकिन अब बताइए, जब फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग बन रही है, आप जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, आप कोई भी आदमी, अगर आपका ही मैं चाहूं तो आपका फिंगर का क्लोन मैं कहीं से ले सकता हूं। अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई होगी या कई जगह आदमी जाकर के अपना फिंगरप्रिंट रखता है, डाल देता है, अगर उसका हम क्लोन बना लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उसमें OTP की जरूरत नहीं है। अब मैं वो जो माइक्रो ATM है जिसपे आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, स्कैन के बाद 10,000 तक डेली विड्रॉल कर सकते हैं, डेली। तो ये जो गरीब लोग हैं उनके AEPS इनेबल सिस्टम से इतने फ्रॉड हो रहा है कि मत पूछिए। फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग इतना आसान है कि आप जाइए यूट्यूब पे, कोई भी ट्यूटोरियल, चाहे हैकिंग का ट्यूटोरियल हो चाहे कोई भी ट्यूटोरियल, आप ट्यूटोरियल ऑलरेडी है। कोई आप काउंटरफिट चेक बनाना चाहते हैं, यू हैव ए ट्यूटोरियल, यू गो ऑन यूट्यूब। आजकल हम लोग ये कह रहे हैं कि गूगल जो है महागुरु है। गूगल ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कुछ नहीं हो सकता है? मतलब कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पुलिस पर्सनल, लॉ एनफोर्समेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स साथ में आकर के काम नहीं कर सकते हैं? देखिए अभी 6-7 दिन पहले MHA ने इसी पे एक मीटिंग कंडक्ट की, सीनियर लोग थे, मैं भी था उसमें। तो मैंने अपना यही सुझाव रखा कि नाउ ये जो साइबर क्राइम या इकोनॉमिक क्राइम है, ये इस तरह का बन गया है कि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, हमारा इन्वेस्टिगेशन एंगल इन्वॉल्व है, साइबर फॉरेंसिक है, प्लस हमारे IPC, इंडियन पेनल कोड या हमारे एविडेंस एक्ट या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन्वॉल्व है। एक आदमी से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सब कुछ जानेगा, हो ही नहीं सकता कि वो हैकिंग भी जाने, वो IS की ऑडिटिंग भी जाने, वो बैंक के सारे रूल्स रेगुलेशन भी जाने, IPC CRPC भी जाने, पुलिस कैसे सर्च एंड सीजर भी जाने, साइबर फॉरेंसिक भी जाने। क्या आप सोच सकते हैं एक आदमी कर सकता है ये? नहीं, पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो केरल का मॉडल है, जो साइबर डोम का मॉडल है, उन्होंने बनाया है, केरल पुलिस ने किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं इस मॉडल को, जिसमें एकेडमिया भी है, जिसमें इंडस्ट्री भी है, पुलिस भी है। वो PPP मॉडल में ये काम कर रहे हैं और अच्छा उनका रिजल्ट है। वो किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो वहाँ उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल जाता है, उनको 10 तरह की लर्निंग मिल जाती है, सपोर्ट सिस्टम उनका अच्छा हो जाता है। हम एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है, हम थोड़ा बहुत बेसिक तो हम जानते हैं, बट ये बेसिक नहीं रह गया ना, ये स्पूफिंग बेसिक नहीं है। अगर कोई आदमी VoIP सर्वर बना करके या उसका डेटा हमारे किसी गेटवे से लैंड करके हमारे इस नेटवर्क पे आ करके हमारे स्विच में आता है और स्विच से कोई स्पूफ उसका जो नंबर है वो कोई दूसरा डिस्प्ले हो रहा, तो ये टेक्नोलॉजी को सीधे ट्रैक करना, स्विच से ले जाकर के गेटवे से VoIP सर्वर, उसमें भी कैरियर इन्वॉल्व है बीच में। तो ये टेक्नोलॉजी, कोई आदमी प्रॉक्सी यूज कर रहा है तो प्रॉक्सी को पहले ये जानना कि प्रॉक्सी होता क्या है, पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या VPN और प्रॉक्सी है, फिर हम वहां जाएंगे, फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और 10 तरह की ये टेक्नोलॉजी छोटी चीज नहीं है, और एक क्राइम है और 10 टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। एक क्राइम है, सिंपल सा एक क्राइम है और टेक्नोलॉजी 10 तरह की इन्वॉल्व है।
तो जब तक हमारा एक्सपोजर इस टेक्नोलॉजी का पूरा 360 डिग्री नहीं होगा, तब तक आप अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं हर साइबर क्राइम के केस के लिए एक पूरी कमेटी बननी चाहिए, एक टीम बननी चाहिए। मेन इन्वेस्टिगेटर कोई भी हो सकता है, असिस्ट करने वाले टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट, क्योंकि पूरा खेल टेलीकम्युनिकेशन का है। Absolutely. सारा क्राइम ही उसी से है भाई। या तो कॉल रहेगा, या वीओआईपी कॉल रहेगा, या इंटरनेट कॉल रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो सारा खेल जो है ये टेलीकम्युनिकेशन। इतने ढेर सारे एक्सपर्ट मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आए और किसी केस को क्रैक करें। और दूसरा, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्यों कि कोई भी क्राइम लोकलाइज नहीं है। कोई भी क्राइम आप देखिए तो उसमें साइबर क्राइम है तो इंटर स्टेट या इंटरनेशनल चीजें इन्वॉल्व है। क्राइम हम यहाँ कर रहे हैं, बैंक का सर्वर कहीं और है, फेक वेबसाइट जो बनाया उसका सर्वर कहीं फॉरेन में है, तो कहीं से मलाया ट्रीटी की भाई आप ट्रीटी के तहत आइए, तो ये तो 3 साल लगेगा। उसमें तो ना सर्वर रहेगा, ना डेटा रहेगा, ना कोई, ना मेटा डेटा रहेगा, कुछ भी रहेगा ही नहीं। तो गया। आप देखिए, जब आपने देखा होगा जब बांग्लादेश में जो बांग्लादेश बैंक पे जो अटैक हुआ था, साइबर अटैक, जो उनके स्विफ्ट सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके $90 मिलियन पैसे जो फेडरल बैंक यूएसए से ट्रांसफर किए गए थे फिलीपींस, और ये कितना लगा, एफबीआई भी उसमें थी, पूरी सारी इंटरनेशनल एजेंसी लग गई, तब बहुत कम रिकवर, 26 मिलियन को रिकवर कर पाए। तो अब ये इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना ये जबरदस्त एक सिंडिकेट इंटरनेशनल बना हुआ है। आप देख लीजिए, तो तमाम तरह के साइबर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। कोई रशिया से कर रहा है, कोई चाइना से कर रहा है, कोई ताइवान से कर, कोई नॉर्थ कोरियन तक, बताइए, अटैक कर दे रहे हैं। अब बताइए इसका क्या समाधान है? नहीं, आपसे यही पूछना चाह रहे थे सर। एंड मतलब बिफोर वी गेट इनटू अ लिटिल मोर इंट्रिकेट डिस्कशन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये मतलब मोडस ऑपरेंडी तो एक चीज है साइबर क्रिमिनल्स की, लेकिन साइकोलॉजी क्या होती है? मतलब ये आपने बताया कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ नाउ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट, और पेटी क्रिमिनल्स थे किसी जमाने में, बट नाउ दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट। तो इसको मतलब दोष किसको दें? ह्यूमन इग्नोरेंस को दोष दें, या इनकी सोफिस्टिकेशन को की तारीफ करें? कैसे, मतलब व्हाट इज देयर साइकोलॉजी? देखिए, जब कौटिल्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र की, तो आप पढ़िए, तो उसमें भी 49 तरीके के फ्रॉस्टर थे। कौटिल्य कितने, बताइए, कितने 100 साल पहले जो है लिखा। तो ये जो फ्रॉड है ना, फ्रॉड और ये डिसीट और ये ट्रीट, ये सब चीजें, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ये हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा। अब क्या है, उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल गया। जैसे आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आज आप ले रहे हैं, आप बैठे हैं मुंबई में, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपकी ऑडियंस पता नहीं कहाँ कहाँ सुन रही होगी, लिंक्डइन पे। एग्जैक्टली यही चीज, इसी का सपोर्ट क्रिमिनल को मिल रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले क्रिमिनल्स क्या करते थे, फिजिकली आपको अटैक करते थे, और उसके बाद आपके बच्चे को ले जाते थे किडनैप करके, और कहते थे कि आप वो फिरौती दो, नहीं तो हम आपके बच्चे को नहीं देंगे। सही बात। अब वो यही फिरौती, रैंसमवेयर अटैक क्या है भाई, उनको अल्टीमेट, उनका मोटिव है पैसा। रैंसमवेयर के सारे केसेस में अल्टीमेट मोटिव पैसा है। वो ये भी जान गए हैं कि हम इस ट्रैक को कैसे छुपाएं। हम बिटकॉइन से पेमेंट लेंगे, वो जान गए हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी बनी है खूबसूरत चीज कि इसका बड़े बहुत ही खूबसूरत ही उस कारपोरेट वाले कर रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए भी मौज के दिन है। क्यों? आप पेमेंट दे दीजिए उनको बिटकॉइन के थ्रू। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इंडिया में कोई ऐसी एजेंसी है जो उसको ट्रैक कर ले? अगर वो चाहे तो आप एक्सचेंज तक पहुंच सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तक पहुंच सकते हैं सिर्फ। उसके बाद से आप, और एक्सचेंज कोई भी बना सकता है, एक्सचेंज का कोई रेगुलेटर नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अगर हमने बना दिया, केवाईसी का कोई नाम नहीं रखा, कोई केवाईसी का नाम नहीं रखा, पैसा कहां जा रहा है, कौन, कोई एजेंसी बता पाएगी? ये चैलेंज है आज की डेट में टेक्नोलॉजी का। ये है कि स्पूफिंग करें, और हम अगर किसी अफ्रीकन कंट्री से या कोई ईस्ट यूरोपियन कंट्री से जहां आईटी एक्ट ही नहीं है, या आईटी एक्ट है तो हमारी अपनी कोई ट्रीटी नहीं है, या वो कंट्री जिसको हम बुलेट प्रूफ होस्टिंग कहते हैं, तो अगर बुलेट प्रूफ होस्टिंग में क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन वो देंगे? नहीं देंगे। आप लिखते रहिए उनको। क्या आप गवर्नमेंट को कंपेल करेंगे? लिखते रहिए, गवर्नमेंट के लेवल पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो जब वो जान गए कि इस तरह का, इसीलिए उन्होंने सिंडिकेट बनाया, उनको अटैक करना है सिंगापुर में, क्रिमिनल बैठा हुआ है रसिया में, अटैक करेंगे, सिस्टम पहले कंप्रोमाइज करेंगे यूएस में, फिर वहां से अटैक करेंगे, घूमते रहिए। तो ये आज की डेट मैं ये कहता हूँ, कारपोरेट को पैसा, गवर्नमेंट के जितने सीनियर पॉलिसी मेकर से जो पॉलिसी डिसाइड करेंगे, उनको समझनी पड़ेगी इस चीज को। और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट और ये सारे लोगों के एक्सपर्ट्स को लेकर के
बैठना पड़ेगा और ये अब ये आपको सीआरपीसी में भी चेंज करने पड़ेंगे, आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब चेंज करने पड़ेंगे आपको, ये हालात जिस तरह के आ रहे हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर कि लॉ बड़े आर्काइक हैं, और जब ये बॉर्डर क्रॉस कर जाती है चीज तो बहुत सारी चीजें इसमें और जुड़ जाती हैं कि आपकी ट्रीटी है कि नहीं है, आप उस तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड यूज करते हैं कि आपको पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि साइबर क्राइम इज, आई मीन यू आर राइट कि साइबर क्राइम का पहला मोटिव फाइनेंशियली होता है, और जैसे आपने कहा रैंसमवेयर, फिरौती का मतलब ही है कि आप पैसा दो और अपना सामान लेके जाओ वापस, चाहे वो इंसान है, चाहे आपका डेटा है, कुछ भी है। लेकिन देयर आर अदर types of cyber crime also committed using the cyber tools, like crime against women, like crime against children. For example, cyber crime against women is at its peak, or close to 60% women victim of online abuse. I mean, due to online abuse, 74% women on Facebook had to either block someone or do something. ये नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, और ये अब और दुनिया भर के सोशल टूल्स आ गए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दुनिया भर के व्हाट्सएप है, एंड विद द राइज इन सोशल एक्सपोजर क्राइम आर आल्सो इन राइज। सो आपका क्या असेसमेंट है सिचुएशन का सर, कैसे डील करें इसको? देखिए, जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हो रहे हैं, या अदरवाइज भाई जो आप कह रहे हैं साइबर स्टॉकिंग के केसेस बढ़े हैं, ग्रूमिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, ये केसेस इसलिए बढ़े हैं कि टेक्नोलॉजी ने उनको आसान बना दिया है। अब मैं आपको आज की डेट में जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, जो आपकी सिंथेटिक इमेज बना ले रहे हैं। सिंथेटिक इमेज आपकी बन रही है, सिंथेटिक आपकी वीडियो बन जाएगी, पिक्चर आपका ये रहेगा और उसके नीचे हम कुछ और कहीं से कोई क्लिप ला करके उसको सिंथेटिक बना देंगे। और किसी लड़की को अगर आप बना करके आप उसको थ्रेट देते हैं, आप फेसबुक पे किसी को पोस्ट कर देते हैं कि ये लड़की इस तरह की है, तो आप सोचिए उसके लिए तो सुसाइडल हो गया। इस तरह के ढेर सारे मेरे पास केसेज आ रहे हैं। लड़की कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, लड़की ने कभी एक दोस्ती में आकर के कभी कहीं किसी मॉल में गई, उसने अपना फोटो दे दिया, अब उसको उसकी सिंथेटिक इमेज बनाई जा रही है। आप सोचिए, ये टेक्नोलॉजी का मार्फिंग टूल्स इस तरह के आ गए हैं कि आपको फ्री में मिल रहा है। आप किसी की इमेज को मार्फ कर दीजिए, कुछ भी बना के वायरल कर दीजिए, तो आप निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि वीमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन दे आर एट द रिसीविंग एंड इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और इस तरह के केसेस हमारे पास आ रहा है कि द पीपल हु आर द विक्टिम, यू नो, दे हैव गॉन इनटू डिप्रेशन एंड दे आर द हाई प्रोफाइल। आपको ऑल ऑफ सडन इन द नाइट यू गेट अ वीडियो कॉल, एंड द मोमेंट यू रिसीव द वीडियो कॉल, यू नो, एक लड़की उस साइड में रहती है और एकदम कंप्लीटली नेकेड रहती है, और क्या करते हैं, बाय यूजिंग द स्क्रीन कैप्चर टूल जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद और उसके पहले आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइलिंग आपकी फेसबुक पे जाकर के प्रोफाइलिंग करेंगे, आपके फेसबुक फ्रेंड बनेंगे, अब आपके फेसबुक में सबको जानते हो। उसके बाद ये आपका स्क्रीन कैप्चर करके उसके बाद आपको धमकी देंगे कि आपकी बेटी को भेज देंगे, आपके पेरेंट्स को भेज देंगे, आपके डायरेक्टर को भेज देंगे। अब सोचिए, हमारे पास मोर देन 100 केसेज हैव गॉट इन लेस देन 3 months, और हाई प्रोफाइल लोग रोते हुए आए कि हम क्या करें, इसमें हम कितना पैसा दें। हमने रैंसम भी दिया उनको, उसके बाद भी वो रोज डिमांड करते हैं। कभी हमने 1 लाख दिया, कभी 2 लाख दिया, उसके बाद भी वो डिमांड कर रहे हैं। वो तो मैंने कहा ये तो एंडलेस है, वो तो ऐसे ही है। हमने कई बार रेड कराया पूरा मेवात एरिया के, कम से कम कुछ नहीं तो मोर देन 500 गर्ल्स एंड बॉयज दे आर इन्वॉल्व इनटू दिस deep fake technology misuse, you know, they are creating your synthetic video and all that। सिंथेटिक भी वीडियो बना रहे हैं, रियल भी बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी यूज करके। तो ये तो है। आज आप पोर्नोग्राफी के केसेस 21,000 चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस यूपी से रिलेटेड आए हैं। 21,000 रिलेटेड ओनली विथ यूपी। अब जो आप जानते होंगे एनसीएमसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल कमीशन फॉर एक्सप्लॉइटेड एंड मिसिंग चिल्ड्रन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करके उनका अपना एक डेटाबेस है। तो कोई भी आदमी कहीं से ब्राउज करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो वो तुरंत फ्लैग कर देते हैं, तो बता देते हैं कि देखिए ये पर्टिकुलर आईपी है जिससे ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। मैं बताऊं कि इन लेस देन 1 year आई हैव गॉट मोर देन 21,000 आईपीस। तो अब ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, कोई ना कोई चाइल्ड तो है, या फॉरेनर है या इंडियन है। आप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खासकर वीमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे, वो इसीलिए तो बढ़ रहा है। अब उनका रिक्रूटमेंट उन्होंने बना दिया, सोशल मीडिया पे रिक्रूट कर रहे हैं।
सोशल मीडिया में 10 तरह के आपको इस तरह के आपको इस तरह से क्रिएट करते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कहीं किसी चीज के नाम पे ले जाते हैं, they push them into prostitution and this pornographic racket। तो ये तो है ही, आप जो आप बता रहे हैं कि वीमेन और आपको मैं बता दूं कि केसेस भी ऐसा नहीं है कि हम लोग मोर देन 1,50,000 केसेस हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं पॉक्सो में, पॉक्सो के रिलेटेड 1,50,000। जब से CCTNS आया है, मैंने एक दिन रिकॉर्ड निकलवाया था, तो वी हैव रजिस्टर्ड मोर देन 1,50,000 केसेस इन पॉक्सो। तो ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन क्या करेगा, हर तीसरा आदमी चौथा आदमी ग्रूमिंग में किसी तरह से स्टॉक कर रहा है किसी के पास। आजकल ये इसने सोशल मीडिया ये इंटरनेट ने ऐसा तमाशा किया है पुलिस वालों के लिए कि हम लोग तो दिन भर परेशान रहते हैं इसी में। करें क्या? आप देखिए दंगा फड़ाने, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैसे चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए इंटरनेट के थ्रू। हमारे लिए इट्स द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर लॉ एंड ऑर्डर। तो सर ये जो हाँ आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी सर, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनता जा रहा है साइबर क्राइम का। इसका क्या मोटिव होता है? जस्ट कि दंगा भड़काएंगे और मिसक्रिएंट्स जो है कुछ भी अफवाह फैला देंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन तो दंगा भड़काने वाले अलग हैं, कारपोरेट एक दूसरे के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन और उसमें है, और कैंपेन में है तमाम पॉलिटिकल लोग हैं, तमाम इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब हर सेगमेंट आप अपने उसके जो विरोधियों के खिलाफ चला रहे हैं। अब क्या क्या करेंगे? आप देखिए ना, रोज ट्विटर पे हंगामा होता है, आप देख ही रहे हैं, रोज ट्विटर का हंगामा होता है, रोज किसी न किसी कोई ऐसी वायरल न्यूज आती है। तमाम ऐसी कंपनियां जो फैक्ट चेक में आ गई, इसी के बदौलत उनका अपना रोजी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज की डेट में ना हर आदमी कैरेक्टर असैसिनेशन में कोई लग रहा है। आप मान लीजिए आपने हमको निकाल दिया अपनी कंपनी से, तो कल आपकी कंपनी के अगेंस्ट में हम मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने लगे। और इसी को लेकर के ढेर सारे क्रिमिनल्स जो टेक्निकली स्मार्ट हैं, उन्होंने अपना बिजनेस ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एज ए सर्विस देना शुरू कर दिए, साइबर क्राइम एज ए सर्विस देना शुरू कर दिए, रैंसमवेयर टूल एज ए सर्विस मिल रहा है। बताइए, रैंसमवेयर टूल आपको लेना हो आप ले लीजिए, एज ए सर्विस आपको मिलेगा जी। आपके कैरेक्टर असैसिनेशन का टूल मिलेगा, 2 मिनट में आपको लोग हाँ हम कर देंगे, उनको हमको इतना पैसा चाहिए। आप सोचिए इतना आसान हो गया ये सारी चीजें। अच्छा सर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि जैसे कोई मोबाइल फ्रॉड हुआ या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, तो आप उसको नैब कैसे करते हैं क्रिमिनल को? मतलब कैसे पहुंचते हैं उसकी तह तक? आप कैसे आप उसको नैब करते हैं? लॉ कहां तक सपोर्ट करता है आपको इस चीज की? देखिए कोई भी फ्रॉड होगा तो हम ये देखते हैं कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी पैसा कहाँ गया इसको हम ट्रैक करते हैं, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते हैं। नंबर 1, अगर मान लीजिए कोई दूसरे तरह का मोटिव है, जैसे आप बता रहे हैं गर्ल और लेडीज और इन सब का, अदरवाइज छोड़ दीजिए फाइनेंशियल क्राइम में तो हम सबसे मनी ट्रेल पे जाते हैं हम लोग। और मनी ट्रेल में क्या है कि मनी ट्रेल कहाँ गया इसको आइडेंटिफाई, कुछ डेटा हमको बैंक से मिलता है, कुछ हमको डेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है, कुछ जो आपकी मोबाइल फोन की IMEI हम रन करा लेते हैं, कुछ में LBS लोकेशन हमको मिल जाता है, कुछ में कुछ नहीं मिलता तो हम टावर डंप निकलवा लेते हैं, CCTV फुटेज निकलवा लेते हैं। तो ये ढेर सारी हमारी बैकएंड पे पुलिस की एक्सरसाइज चलती रहती है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो हम कनेक्ट करके फिर हम करते हैं, अच्छा ये अब मेरा क्रिमिनल मिल गया, ये हमको मिला हुआ। अदरवाइज इतना सिंपल नहीं रह गया। आप जाएंगे कि अकाउंट के डिटेल पे जाएंगे तो एक आप सोच रहे हैं कि बैंक अकाउंट के KYC से हम पकड़ लेंगे, नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि मोबाइल फोन की KYC जिसके नंबर पे लिया गया, नहीं, आप उससे नहीं पकड़ सकते। तो कुछ हमारे पेमेंट गेटवे से IP एड्रेसेस हम मंगवा लेते हैं, जहां से उस IP से अटैक किया गया हो, पैसा डाला गया हो। कुछ जगह से हम GPS लोकेशन मंगवाते हैं। तो ये सारी पूरी जो हमारी टूल्स टेक्नोलॉजी है, और ये सारा चीजें हम मिला करके एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कि हमको पकड़ना कैसे है। ये बदमाश चाहे जितना भी स्मार्ट हो, हम अब इसको पकड़ लेंगे। तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए डिजिटल ट्रेल तो रहेगा, डिजिटल ट्रैक। आप जब चाहे पैसा जाए, चाहे आप हमको चाहे जैसे भी अटैक करें, साइबर अटैक करें, तो उसका ट्रैक तो बनेगा ना। ये डिजिटल दुनिया की एक खूबसूरती है हमारे लिए कि उसका ट्रैक है। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो हम जाते हैं बैक ट्रैकिंग उसकी करते हैं। तो बैक ट्रैकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टकरा जाता है, या तो IP से टकराएगा, या IMEI से टकराएगा, या बैंक के विड्रॉल से टकराएगा, चेक से टकराएगा, वो जो सिम जहां से खरीदा है वहां से टकराएगा, सिम नंबर से टकराएगा, कहीं ना कहीं से टकराएगा।
सीसीटीवी फुटेज से टकराएगा। तो हमको तो ये तो पता है कि किसी ने निकाला है तो किसी के पॉकेट में पैसा गया है और किसी के यहाँ से गया है। तो ये है हमारा, हम लोगों के तौर तरीके काम करने की। ये कहीं आपका पैन से कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा, कुछ आपके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से मिलेगा, कुछ कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर से मिलेगा। हम लोग के पास बड़ा ये है। तो ये हम लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं कि ये एविडेंसेस हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट करें। फिर हम लेटर शूट करते हैं सबको, सारी एजेंसीज को, हमको ये इन्फॉर्मेशन दो, ये इन्फॉर्मेशन दो। फिर हमारी टीम रहती है, उसकी एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद हम पकड़ लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो सर ये जैसे आपने अभी केरला का एग्जांपल दिया साइबर डोम का, और हम बहुत बात करते आ रहे हैं, मनोज अब्राहम जी से हमने कई बार बात की है, और आप सही कह रहे हैं। और उसके पीछे जिन मतलब जो काफी सारी प्राइवेट जो लोग हैं वो उसमें शामिल हैं, उसके डेवलपमेंट में शामिल हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें शामिल है। तो आप ये बताएं हमको कि और स्टेट्स ऐसा मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं 15 दिन पहले IIT कानपुर गया था। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है ना, उसको सिमुलेट करके बकायदे उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है वहां, बकायदे वो अटैक करके दिखाते हैं। मतलब वाकई अगर मान लीजिए सीमेंस का कोई स्विच है तो सीमेंस का स्विच उन्होंने खरीद के लगाया हुआ है। हाँ। अगर वाटर पाइप, मान लीजिए कोई गैस पाइप जैसे कॉलोनियल पाइपलाइन पे अटैक हुआ, बकायदे उन्होंने बनाया हुआ है पाइपलाइन पे अटैक कैसे होगा, कैसे ये गैस रुक जाएगी। ये IIT का एक प्रोजेक्ट था, उसको C3I बोलते हैं, उसमें उन्होंने किया हुआ है। हम लोग गए उनसे, बकायदे हम लोगों की पार्टनरशिप चल रही है। प्लस यहाँ पे अभी IIT का ही, जो IIT कानपुर का ही IIT नोएडा में एक ब्रांच ऑफिस है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। मैं वहां जाकर के जितने भी सीनियर लोग थे उनसे सबसे इंटरेक्ट किया। मैंने कहा अब हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पुलिसिंग, और हम कैसे, हाउ एम आई गोइंग टू ट्रेन माई कॉप्स and my engineers on that simulated infrastructure that has been created in C3I IIT campus कानपुर। तो हम लोग इस लेवल पे जाके आज की डेट में काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि सारी स्टेट एजेंसी कुछ ना कुछ कर ही रही है, क्योंकि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब अटैक होगा तो अल्टीमेटली, मान लीजिए अगर हमारे पावर ग्रिड पे अटैक होता है, NTPC पे अटैक हो गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अटैक होगा वो आखिर पुलिस में ही तो आएगा, केस पुलिस के पास ही आएगा। तो पुलिस को तो अब नॉलेज वाइज भी उसकी ट्रेनिंग भी उस तरह की होनी चाहिए, हमारे पास टूल्स टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, इक्विपमेंट भी होना चाहिए उसी लेवल का, तभी हम ट्रैक कर पाएंगे जी। ये है। तो अब हर स्टेट एजेंसी जो है, काफी कुछ चीजें जो है इस पे टेक्नोलॉजी में काफी उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी में सोच। अब हर चीज तो देखिए, हमारे यहाँ स्टेट डेटा सेंटर है, हमारी जितनी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं सब उसी पे होस्टेड है। अब उसकी सिक्योरिटी पे हम बात कर रहे हैं कि हम उसको कैसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे जी। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सर, पब्लिक के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे तो प्रेमनाथ कीनी जी पूछना चाह रहे हैं कि why are police reluctant to register cases of financial cyber crimes? Why is police reluctant to register cases of financial cyber crimes? ऐसा नहीं है। नाउ आप उनको बताइए कि देयर इज अ पोर्टल, cybercrime.gov.in। सो जस्ट उनको तो आप मोबाइल वेबसाइट पे जाएं और जाकर के ही कैन रजिस्टर इस केस। सो अब हम कहाँ बचने वाले हैं। अब तो पहले उनको जाना पड़ता था थाने पे, और नाउ ही डिड नॉट गो टू द पुलिस स्टेशन, सिंपली ही हैव टू ओपन अ वेबसाइट एंड देन ही कैन गेट हिज केस रजिस्टर्ड। इट्स एज सिंपल। तो अब कहाँ ये इस तरह का रहा। 155260 हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है, 155260। तो अब तो उनके पास दिस इज द ऑप्शन, ही कैन स्ट्रेटवे डायल दिस नंबर 155260 एंड ही कैन लॉज हिज कंप्लेंट। अब तो पुलिस भाग भी नहीं सकती, बताइए उनको। हाँ नहीं, ठीक कहा आपने। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ द अटैकर यूज टॉर, देन हाउ टू ट्रैक देम? देखिए, टॉर अगर कोई यूज कर रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रैक, क्योंकि देखिए टॉर पे किस नोड से कहाँ हॉपिंग हो रही है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे उसको ट्रैक करने के लिए। सपोर्ट, वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट। टेक्निकली वी कैन, बट इफ वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑल्सो। So somewhere MLAT is involved, It's the crime is that of international nature. That's why we are not getting support from vendor, hosting service provider.
and then from the country as well, legally, you know. That's why it's very difficult, almost impossible. ओके तो सर कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उनको साइबर क्राइम एज एन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर की तरह ज्वाइन करना हो अगर इंडियन पुलिस में, तो क्या कर सकते हैं वो? देखिए, उनको थोड़ा वो करना पड़ेगा, या तो IPS अफसर बन सकते हैं, या स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू PPS डिप्टी SP बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं। अगर उनमें ये क्वालिटी है, थोड़ा सा टेक्निकली साउंड है, तो साइबर विंग में आ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ साइबर विंग में हम उन लड़कों को लेते हैं कि जो टेक्निकली थोड़ा साउंड है, जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो, उनको तुरंत हम रिक्रूट करते हैं। ऐसे लोगों की तो हमारे यहाँ बहुत जरूरत है, बताइए। अगर कोई तैयार हो तो तुरंत हम लेने के लिए तैयार हैं। और हाँ, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि हम लोग अब आउटसोर्स कर रहे हैं। अभी हमने 44 पोस्ट फॉर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट वी हैव गॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड वी आर गोइंग टू आउटसोर्स दिस। तो उसमें यू नीड नॉट टू बिकम अ कॉप, a police, straight away you come और आप इंटरव्यू दीजिए, and we can recruit you। और ये हर स्टेट में, अभी पंजाब पुलिस ने 366 पोस्ट जो है दे क्रिएटेड, यू नो सच। तो अब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जो है आ सकते हैं पुलिस में, और दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सर जैसे अभी क्वेश्चन आ रहा है कोई, जैसे डीप और डार्क वेब आपने अभी बात करी, तौर के बारे में आपने बात करी, तो डार्क वेब, डीप वेब, तो क्या पुलिस की कुछ ट्रेनिंग होती है? साइबर क्राइम पुलिस जो होती है, साइबर पुलिस, उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है इन सब? देखिए, डार्क वेब पे हमारे बच्चे भी रहते हैं डिकॉय बन करके, और दूसरा हम लोगों के पास कई ऐसे टूल्स हैं, और प्लस हम लोगों के पास अच्छी टीम है जो डार्क वेब का पूरा डेटा, मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो 45 बिलियन रिकॉर्ड्स का ऑफलाइन मोड में डेटा बनाते रहते हैं। जैसे डार्क वेब पे कुछ भी आता है वो करते रहते हैं। वो डिफरेंट ग्रुप्स में, कोई ड्रग पे काम कर रहा है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम कर रहा है, कोई पोर्नोग्राफी पे काम कर रहा है, कोई कार्डिंग का लिया हुआ है कि हम कार्डिंग पे ही काम करेंगे, कोई रैंसमवेयर अटैक वाले गैंग में है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे सिर्फ आप ही लोग रहते हैं। अब आज की डेट में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी डार्क वेब पे बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो डार्क वेब के अच्छे टूल्स दे रही हैं। मैं अगर किसी का नाम लूंगा तो उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जो डार्क वेब पे अच्छा। और लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने डार्क वेब पे इस तरह का टूल बनाया है कि मतलब उसको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो इसलिए डार्क वेब पे हम काम करते हैं। तो सर जैसे एक पूछना चाह रहे हैं प्रवीण जी कि एज अ जनरल पब्लिक, इफ वी वांट टू पास ऑन एनी लीड्स टू द पुलिस फोर्सेस, हु इज द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या वो उनको पोर्टल पे जाना होगा? नहीं, क्या चाहिए उनको? मतलब अगर कोई लीड देना चाहें साइबर क्राइम, वो तो लीड के लिए तो मेरा नंबर है, वो इंडिया के कहीं भी, और फॉरेन का भी कोई लीड देना चाहता हो तो यू कैन व्हाट्सएप। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि cybercrime.gov जो MHA का वेबसाइट है, देयर इज ए स्कीम फॉर साइबर वॉलंटियर्स, यू नो, वी आर रिक्रूटिंग साइबर वॉलंटियर्स। देयर आर 3 कैटेगरीज। साइबर वॉलंटियर्स की 3 कैटेगरी बनाया है। नंबर 1, हु कैन फ्लैग इलीगल कंटेंट, जो सोशल मीडिया में फालतू इलीगल चलते रहते हैं और इस तरह की चीजें, था दे कैन फ्लैग, दे कैन पार्टनर विथ पुलिस, यू नो। दूसरा यह है कि साइबर कंसल्टेंट, अगर आप साइबर एक्सपर्टीज ऐप में है तो वी कैन हायर यू, वी कैन मेक यू अ साइबर एक्सपर्ट वॉलंटियर, यू नो। और तीसरा, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कैंपेनिंग में, अवेयरनेस कैंपेन में, तो साइबर क्राइम पे कोई हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं तो यू कैन बी द पार्ट। So there are 3 categories of cyber volunteers, and you just go on cybercrime.gov.in, go in category cyber volunteers, and आप अपना दे दीजिए willingness कि I want to be cyber volunteer, आप पुलिस के साथ जुड़ जाएंगे। एक क्वेश्चन सर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगा। निमिषा सिंह है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। She wants to say that Professor Triveni Singh sir, if money trail involvement is deliberately kept at bay while committing the cyber crime, and most importantly, when the criminal admits or boasts about committing the crime, what could be the remedy for the victim? The problem, if you are sending your money through Bitcoin, then I think that is the only way that we can attract.
otherwise the money trail is everywhere. If somebody is taking your money into my account, then it has got a trail, and the banking sector is going to support us. Within minutes we get all the money trails. अगर इस अकाउंट से उस अकाउंट से पेमेंट, और so immediately we get information from all these banks. And हम in some of the cases, the most complicated cases, we take help of जो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की. So immediately we send a letter, we request them, and they provide all the data. So money tracking nowadays, it's matter of minutes, not hours. मैं बता रहा हूँ, just within minutes we can get all the details and we can track you. अब कोई आदमी, somebody has sent money through Bitcoin or Hawala, it may take some time, Otherwise, tracking of money in this, core banking domain, it has become very easy for law enforcement agency. It's not an issue for us. ग्रेट सर. तो सर मतलब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मेरे, फिर हम आपको ज्यादा देर रोक के नहीं देखेंगे. हम समझते हैं कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर. तो साइबर क्रिमिनल जब क्राइम कर लेता है और जब वो क्राइम लाइमलाइट में आ जाता है, तो उसको जब आप उसको पकड़ते हैं साइबर क्रिमिनल को, तो लॉ आपका साथ देता है? क्योंकि हमने ये सुना है कि जैसे जमतारा वगैरह के बारे में हमने बहुत सुना है, वहां से fraud calls होते हैं, and people get lured, and then the fraud is committed, but the law is such porous कि वो पकड़ में नहीं आता है क्रिमिनल. ऐसा ये सच बात है? देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा, प्रमोद मंडल को हमने अरेस्ट किया अभी 5 दिन पहले, ठीक है. प्रमोद मंडल जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रैकेटियर साइबर क्रिमिनल जामतारा एरिया का है, द मोस्ट फेमस वन. हमारी टीम गई, पहले दुमका गई, मैंने भेजा. जब वहां से नहीं हुए, फिर उसके कुछ हमको पता चला कि ये कोलकाता एरिया में है. कोलकाता में 5 दिन हमारी पुलिस कैंप की, कोऑपरेशन मिला पुलिस से, और हम उसको अरेस्ट करके लाए. आज की डेट में हमने उसको जेल भेजा है. मैं बताऊं, पुलिस के सामने चैलेंजेस तो है कि हम लोगों के पास उतना रिसोर्स नहीं रहता, लेकिन जब हम डिसाइड कर लेते कि ये बड़ा क्रिमिनल है और बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमारा चाहे जितना भी टाइम लगे. अब रही बात लीगल सपोर्ट की, ऑफ कोर्स वी कैन अरेस्ट एनीवन फ्रॉम इंडिया. हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं. इफ ही इज वांटेड इन माय केस, आई कैन गो एनीवेयर एंड अरेस्ट एनीवन. As far as local support is concerned, we immediately talk to senior officers. They provide all the assistance to the police. अब हम we go to the court, we take transit remand, then उनको लाते हैं, and then put them behind the bar. तो करते हैं, सपोर्ट भी मिलता है, हम भी देते हैं. हमारे यहाँ अगर अभी महाराष्ट्र के आपके साइबर की एसपी थी, उन्होंने 2-3 केसेस में हमसे सपोर्ट मांगा, मैंने तुरंत अरेस्ट करवा के महाराष्ट्र भिजवाते. तो इसलिए हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है. और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि एमएचए में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बना हुआ है, जिसको I4C कहते हैं. तो I4C आज की डेट में क्या है कि इन्वेस्टिगेशन, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म बना दे रहे हैं हर चीज के लिए. जैसे जामतारा के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म है, जो रिलेटेड जो एक स्टेट्स हैं उनका एक, जैसे जामतारा में मैं हूँ, और मैं यहाँ मेवात एरिया से जो आपके OLX के फ्रॉड चल रहे हैं, या जो ये वीडियो पोर्नोग्राफिक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो कैप्चर करके और ऑब्सीन और ब्लैकमेलिंग के कैसे, ये बड़ा रैकेट है, वहां से काम कर रहा है. उसमें भी जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, मैं हूं. तो ज्वाइंटली काम करने का फर्क ये मिल रहा है कि 4-10 एसपी मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं. तो आपने देखा होगा इन लास्ट 2-3 months वी हैव अरेस्टेड मोर देन 500, more than 500 accused have been arrested from Jamtara and from this area alone. तो ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मिलता है. तो सर, ये तो रही बात क्रिमिनल्स की. अगर हम आपसे लास्ट एक सवाल पूछें, और उसमें ये सवाल मेरा बहुत ही मतलब मैं पूछना चाह रहा था बहुत देर से आपसे, कि चलो क्रिमिनल तो एक माइंडसेट है, वो क्राइम करेगा, ठीक है, उसका मोटिव है फाइनेंशियल गेन्स, उसका मोटिव है किसी को इंसल्ट करना, या किसी को बदनाम करना, या किसी को इम्पर्सनेट करना. बट एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन, ये हमारी क्या ड्यूटीज है सर, कि वी ट्राई एंड नॉट टू गेट एंट्रैप्ड into the traps that have been set by these criminals. हम कैसे उससे बचें, अपने आप को कैसे बचाएं उस चीज से? देखिए, हम टेक्नोलॉजी की बाद में बात करेंगे.
हम पहले जो सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स है ना, सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स वो जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि बेवकूफ बना दिया उसने, बेवकूफ कैसे बना देता है भाई ये बताइए। डेटा ब्रीच के लिए आप जिम्मेदार, मैं कारपोरेट पे अब आ रहा हूँ, डेटा ब्रीच के लिए आप जिम्मेदार, आपका डेटा ब्रीच भी हो जाता है तो आप पुलिस में नहीं आते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा ब्रांड अफेक्टेड होगा, मीडिया में आएगा, कौन लिटिगेशन में जाए, छोड़ो यार कुछ पैसा गया, समझ रहे हैं कि नहीं। तो डेटा ब्रीच के लिए कौन जिम्मेदार है? कारपोरेट सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे जहां हमारा केवाईसी जहां से भी जा रहा हो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गवर्नमेंट में जहां डेटा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट सेक्टर जिम्मेदार है। तो एक डेटा ब्रीच, अब उसी डेटा पे वो क्रिमिनल खेलता है। अब वो जान गया कि ये राहुल जी हैं और ये ग्रे मीडिया के एडिटर हैं और इनका डेट ऑफ बर्थ ये है और इनकी सैलरी इतनी है और ये मुंबई में रहते हैं और इनकी पढ़ाई ये हुई है। आपको अचानक फोन आता है, अरे राहुल कैसे हो, क्या अरे अब आपका स्कूल भी, क्योंकि आपने सोशल उसमें लिंक्डइन पे आपने अपना कॉलेज भी दिया, अरे भूल गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिन, बस खत्म। आप सोचे अरे यार कौन है कौन, अरे राहुल पप्पू बोल रहा हूँ। तो कहे अच्छा अच्छा, अरे हाँ बताओ बताओ पप्पू क्या बात शुरू हो गया। तो ये मैं बता रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स आपको जानना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी से कारपोरेट सेक्टर को तो बाकायदे मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का एक कोर्स डिजाइन करो जिसमें फिशिंग कैसे, आप कैसे सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स आप पे कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप शिकार होते हो, हम फिशिंग सिमुलेट करके दिखाएं आपके पूरे कारपोरेट में। आप लोग करते भी हो इस चीज को। अब आप बताइए, जब आप जो ISO 27001 बिकने लगेगा सर्टिफिकेट की तरह, मैं बार बार उठाता हूँ और इसका कोई दवा नहीं है, आप 10,000 रुपया दे सर्टिफिकेट ले लिए, तो अगर आप केवल कंप्लायंस में इंटरेस्टेड हैं कि हमारा लीगल कंप्लायंस है यार, इसको जल्दी खत्म करो, एक सर्टिफिकेट ले लो, तो आप खत्म। फिर आप जो डेटा ब्रीच भी छुपाएंगे, फिर रैंसमवेयर अटैक भी छुपाएंगे, और फिर आप फिरौती भी देंगे, और जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है सब बदमाश ले जाएंगे, और आप ऐसे घुटते रहेंगे जिंदगी भर और बदमाश ले जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कारपोरेट को अब खुल के आना पड़ेगा। ये लड़ाई एक आदमी की नहीं है, इस लड़ाई में सब लोग इन्वॉल्व है। बहुत बहुत बड़ी बात है सर, इसको इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्लोजर। आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो ये सामने आएगा नहीं, और जब तक आएगा नहीं तो लॉ एनफोर्समेंट क्या कर लेगा इसके अंदर। सही बात है। ये देखिए बच्चे लड़कियां, लेडीज और या और भी लोग सुसाइड करते हैं, तो मैं इसको कारपोरेट सुसाइड बोलता हूँ। आप अगर देखिए वो क्या है, वो क्यों सुसाइड करता है कि वो किसी चीज शेयर नहीं कर पाता है अपनी बात, उसको कोई थ्रेट मिल रहा है या उसकी कोई वायरल हो रही है वीडियो, ना तो पुलिस से शेयर कर रहा है ना मम्मी पापा से शेयर कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है। अंत में क्या है, शी इज कमिटेड टू कि हमको आइदर शी इज गोइंग इनटू डिप्रेशन और शी इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। ये मैं इसको कारपोरेट सुसाइड बोलता हूँ। इफ यू आर डिस्क्लोजिंग, इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग दिस टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड यू आर हाइडिंग इट that there has been some ransomware attack, और आपने फिरौती दे दिया और आप छुपाते रहेंगे, तो now it will be suicidal for you today or tomorrow। इसलिए मैं कह रहा हूँ कारपोरेट अब आओ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर के आप हाथ में हाथ मिला करके कुछ टेक्नोलॉजी सपोर्ट करिए, कुछ हमारा लीगल पावर यूज करिए, क्रिमिनल को पकड़ते। आप देखिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, FBI ने क्या किया, कॉलोनियल पाइपलाइन में जब रैंसमवेयर अटैक हुआ, $5.4 मिलियन उन लोगों ने मांगा बिटकॉइन में, बिटकॉइन का पेमेंट भी दिया कॉलोनियल पाइपलाइन में, आपने देखा होगा। लेकिन उसको क्या हुआ, उसको बिटकॉइन को ही उन सबों ने वो कर दिया, FBI और कुछ और कंट्री के साथ मिलकर के वो पेमेंट अल्टीमेटली नहीं जा पाया क्रिमिनल्स के पास, और डिक्रिप्शन की भी मिल गया था, आपने देखा। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर कॉलोनियल पाइपलाइन इसको छुपाता और 5.4 मिलियन गया होता, वो तो चला गया था। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भी मैं सबको कहता हूँ कि कारपोरेट सेक्टर को खुल के आना चाहिए कि हमारे पे अटैक है तो अटैक है, डेटा ब्रीच है तो है। अब हम डेटा ब्रीच हुआ कैसे, किस वेक्टर से हुआ, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम छुपाएंगे नहीं कोई चीज। ये है। नो करेक्ट। एक क्वेश्चन है सर, अब आप उसका चाहे तो जवाब दें चाहे तो ना दें। कविता जी पूछना चाह रही हैं कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होते हैं क्या टू नॉट एक्ट अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, कुछ ऐसा होता है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी साइबर क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिटिशियन फोन करे। मैंने पूरी अपनी 27-28 ईयर्स में आज तक नहीं देखा। नंबर 2, लोग कहते हैं कि पुलिस पे ये प्रेशर आता है, वो प्रेशर आता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमको तो सही काम करना है, हमको सही काम करना। मैं 18 मंथ्स आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मैं अभी SP था, जब मैं यहाँ साइबर SP बना हूँ। इसके पहले 18 मंथ्स आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन 58 लाख है,
जो टेरर की नर्सरी बोला जाता है, सारे टेररिस्ट जो है वहीं से माना जाता है कि आजमगढ़ उस तरह का बेल्ट है। लेकिन 18 मंथ्स मैंने चला, हमको तो कभी नहीं लगा, ना कोई प्रेशर आया, एक से एक बड़े क्रिमिनल के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, कभी ऐसा नहीं है। देखिए पब्लिक में पुलिस के प्रति जो एक परसेप्शन है वो बड़ा गलत भी बना हुआ, मैं आपको बताऊं। तो ये मैं तो ये कहता हूँ पुलिस और वकील की क्योंकि पुलिस और वकील की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत खराब होती है। दोनों ही अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो दुश्मन मानता नहीं, और दोस्ती तो अच्छी होती है। आपसे बताइए मेरी दोस्ती कितने साल की है? सर मैं तो आपसे बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। एक अंतिम सवाल है सर महेश कुमावत जी का। वो कह रहे हैं कि आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वॉलंटियर बट पुलिस वेरिफिकेशन इज पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनको क्या करना चाहिए सर? अच्छा, कुमावत साहब को बताइए किस स्टेट के रहने वाले हैं? ये मैं इनसे आपको पूछ करके ये आप बता दीजिएगा। उस स्टेट में जो, चूंकि इनका करेक्टर वेरिफिकेशन जो है उस थाने को करना रहता है, तो जब थाना इनको वेरीफाई कर देगा तब ये बनेंगे। तो ये बता देंगे, मैं वहां से बात कर लूंगा, अगर कोई इश्यू नहीं होगा तो वेरीफाई करवा के ये बन जाएंगे साइबर वॉलंटियर। ठीक, तो मैं महेश कुमावत जी को सर मैं जरूर ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा उनकी। इसके साथ सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। I can understand कि मैं आपके संग 2 घंटे और बात कर सकता हूँ, and you have such a wealth of information and so many good engaging stories. लेकिन मैं आपको ज्यादा देर रोक के नहीं रखूंगा सर। Thank you very much for appearing. Thank you Rahul, thank you and have a good day sir. Thank you. Jai Hind. Okay, Jai Hind.